Hello everyone. Today we will study motor nameplate details. Motor topic is very huge and it has vast diversification in its use and types. But in every motor, some basic are same and that can be seen in the nameplate. So we will understand the nameplate of the motor. Understanding your nameplate will help you to choose motor wisely and have a great understanding of it. So let's begin. To begin, you can see the nameplate. This is actual nameplate that we can see in any motor. Some details will be changed based on company to company. So let's understand basic. First is showing the type. It shows basically whether it is squirrel cage motor or split phase induction ring induction motor or some other types that we have must have ordered or it had been installed in your area. The second comes the type, that is also called a frame size is the word. A frame size is small coded letter of motor shaft dimensions. For example, 100L. This is the frame size table. For example, our frame size is 100L2. So the frame size will be base center gap 160 mm, motor side armature dimension 140 mm, distance between shaft to center 100 and shaft length 60 mm. For more, you can pause the video here and see, match the dimensions like A 160, H 100 mm. You can match like this. This is all the dimension. We have a standard set of frame sizes set by government. So no any don't do any supplier can't make any random size of motor. This is for standardization. Now third, we have three phase system, that is motor is in three phase system or single phase system. It represents for which phase it is applicable. The fourth is the frequency on which it needs to be operated. In India, it is fixed at 50 Hz frequency. फोर्थ, ये बताता है मोटर की पावर कितनी है इन टर्म्स ऑफ किलोवाट. अपनी मोटर है 3 किलोवाट की. फिर आता है आरपीएम. फुल फॉर्म है रेवोल्यूशंस पर मिनट. इट डिपेंड्स ऑन द पोल ऑफ द मोटर. 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल. रिमेंबर द फॉर्मूला 120 F/P. फिर सिक्स आता है ड्रॉल करंट, मीन्स मोटर नॉर्मल कंडीशन में कितना करंट लेगी. फिर आता है एफिशिएंसी. इट शोज द हाउ मच मोटर इज एफिशिएंट. ये IE3 IE4 ये कांस्टेंट चेंज होता है एज पर द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. फिर आता है इंसुलेशन क्लास. यहाँ पे इंसुलेशन क्लास F विथ बी राइज लिखा है. इसका मतलब होता है expected insulin class F है उसे expected while the B refers to an expected 80 degree rise. Let's see in detail for more understanding. अभी आपको एग्जांपल अपना इंसुलिन क्लास 1 F है. F is rated for a maximum winding temperature of 155 degrees Celsius and a maximum temperature rise of 105 degrees Celsius. But the actual expected temperature rise of motor is 80 degrees Celsius, which leaves a thermal margin 25 degrees Celsius and the potential for significantly longer winding life. मतलब है कि अपना जो मोटर है उसकी इंसुलेशन क्लास F है जो मैक्सिमम 155 तक सस्टेन कर सकता है. उसके अंदर जो अभी मोटर जो हमारा डिजाइन है वो मैक्सिमम टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. तो अपने पास जो गैप है काफी बड़ी हो जाती है जिससे बेसिकली हमारा वाइंडिंग लाइफ और इंप्रूव होती है. फिर आता है ड्यूटी साइकिल. ये अपने पास 8 टाइप ऑफ ड्यूटीज रहती है. अपनी है S1. यहाँ पे देख रहे होंगे S1 मतलब कंटिन्यू ड्यूटी मोटर. जो मोटर कंटिन्यू चलता है. अपने हर मोटर के एप्लीकेशन के ऊपर अलग अलग ड्यूटी के मोटर आती है. कहाँ जहाँ पे शॉर्ट टाइम ड्यूटी भी लगती है जहाँ पे अपने को बड़ा लोड छोटे टाइम के लिए उठाना रहता है. डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन यू हैव टू सी व्हाट टाइप ऑफ ड्यूटी ऑफ मोटर यू हैव टू ऑर्डर. दिस इज वेरी क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटर. फिर आता है आईपी. आईपी मतलब इंग्रेस प्रोटेक्शन. इस पे दो नंबर लिखे हैं 55. अभी आप इसका नंबर का मतलब निकालने के लिए आपको टेबल दिखाऊंगा. यह है इंग्रेस प्रोटेक्शन का टेबल. फॉर एग्जांपल IP65 अगर पकड़े हम तो 6 का मतलब होता है कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्टैक्ट विथ अ वायर और डस्ट प्रोटेक्शन. सेकेंड होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीन वाटर. ये 65 का मतलब होता है. ऐसे आपका अलग अलग आईपी के अगेंस्ट आप अलग अलग इसका प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. फिर आता है पावर फैक्टर. ये मेंशन करता है नो लोड पावर फैक्टर.
ये लगभग यही रेंज पे रहता है। फिर आता है एम्बिएंट टेम्परेचर। ये हाईलाइट करता है कि हमें कितने एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए डिजाइन है। नॉट फॉर 50 सेल्सियस मतलब नॉट फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस। Now this is another motor nameplate. This is an ideal nameplate. You can see very minute details here that was missed in earlier nameplate. Now example service factor. Motor service factor is a percentage of overloading that a motor can handle for short period. एग्जाम्पल अगर एक 10 HP का मोटर है with a सर्विस फैक्टर ऑफ 1.15, तो सेम मतलब वही मोटर अभी 11.5 HP दे सकता है इफ रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टाइम यूज। मतलब बहुत ज्यादा उस पे मोटर पे ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब SF उसके बेसिकली वो दर्शाता है। फिर आता है कोड। कोड लेटर डेजिग्नेशन है तो क्लासिफाई मोटर्स रेशियो ऑफ लॉक रोटर KVA। Now we'll see on chart for more clarity. This is under comes under NEMA code. NEMA मतलब नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। आपने जो कोड है वो कोड सपोज कोई कहीं पे बी एग्जांपल पकड़े हम, तो फॉर कोड बी रहता है, इसका रेंज है विथ लॉक रोटर केवीए पर एचपी। एक हमने हर हॉर्स पावर में कितना केवी आएगा, अपना कोड लेटर का बी है तो इसका 3.15 से 3.55 के रेंज के बीच में रहेगा। मतलब अप्रोक्स एवरेज रेंज भी दिया हुआ है 3.3। ये बेसिकली टेस्टिंग जब करते हैं उनमें ज्यादातर ये आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। अपने नेम प्लेट में ज्यादातर ये बहुत कम मैन्युफैक्चरर ये मेंशन करते हैं। आप अगर टेस्ट सर्टिफिकेट मांगेंगे उसमें आपको ये दिख जाएगा। नाउ और एक आता है नेमा। नेमा नॉर्मल एफिशिएंसी। नेमा नॉर्मल एफिशिएंसी से लिखा रहता है। इट इज एन एवरेज एफिशिएंसी ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मोटर्स ऑफ द सेम डिजाइन। I will share you what is rating means for clear understanding in the comment section. एवरेज एफिशिएंसी एक रेंज में दर्शाते हैं वो है वैल्यूज की। ठीक है, मैं आपको टेबल नीचे दे दूंगा। नो सो टू बिगिन दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दिस इज व्हाट ओवरऑल वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द हेयर। तो आप भी आपने हमने सारे चीजें कवर कर दी है। होप आपको ये समझ में आया हो। इसमें कुछ आपको मिस हो गया है तो प्लीज आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं वो कवर करूंगा। सो हेयर वी कम टू एंड ऑफ आवर वीडियो। होप आपको समझ में आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। If you still have doubt, mention in comment section. If you want a video on some special topic, please do mention. So please like, share and subscribe if you found it useful. Thank you.